Recording in progress. Equation of circle. If A is the radius and center of the circle is at origin, then equation is given by x square by a square plus y square by a square is equal to 1. A square can be taken common and shifted this side, where A will be the radius and center is at origin. Clear? So this equation sometimes we need it in physics also. So this mathematical other points will be taught to you in math. All right, this much is required. So if I give you this equation, you have to find out the radius of the circle. ये note कर लो, circle का radius calculate करिए. कल will tomorrow we'll discuss. Is it okay? Yeah. Are you there or not? Just confirm. Yes, sir, we are. Yes, sir, we Okay. are. Note down. Note कर लिया होगा I think. काफी देर से है ये. Okay. Next one is ellipse. Suppose वो सर्कल को थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दो और नीचे से भी, it will convert into oval shape or X shape. This type of shape is called ellipse. In this is called major axis. इसको half axis लेंगे तो क्या बोलते हैं? Semi major axis. A is semi major axis and this axis is called minor. छोटी axis है ये. इसका half will be called, what is half is called semi minor axis B. So equation of this will be given by x square by a square plus y square by b square is equal to 1. And here f will be the focus. इधर भी होगा, इधर भी होगा. फोकस हम लोगों ने पढ़ा है कॉनकेव मिरर में. पैरेलल रेज आती है कहाँ पर, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर, फोकस पर मीट होती है. तो दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट. तो इसमें दो फोकस होंगे, इधर भी और इधर भी. ठीक है. जस्ट वी कैन जस्ट रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ दिस ऑप्टिक्स. लाइट के उसमें पढ़ा था उसके टर्म में. अदरवाइज फोकल पॉइंट की डेफिनेशन will be something else in maths. It will be given to you. We are not interested in that. So ellipse will be required. Elliptical planets have the elliptical path around the sun. Do you know this? So when we learn the chapter gravitation, in that elliptical path will be discussed. Focus is sun is at one of the focus. You know, planets ऐसे घूमते हैं elliptical path में sun के चारों तरफ. Sun is at one of the focus. That we will need it in the chapter called gravitation. तो ये क्वेश्चन हमें काम आएगी. We should know what is the semi major axis, what is the semi minor axis, and what is the equation. ठीक है? No problem. Just confirm, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Let's respond because connection is unstable today. It is going off again and again. Okay. So equation, suppose we have this equation, x square by 16 plus y square by 9 is equal to 4. You find semi major axis and semi minor axis. ये भी होमवर्क में कर लीजिए. Just note down. Done.
Again, some problem is there or what? No, sir. No, sir. Okay, note down. And let's see what is the next one. Now some algebraic relation ये already आपको जान होंगे 10th में और अभी भी शायद किए होंगे. a plus b का होल स्क्वायर कितना होता है a minus b, a square minus b square and a plus b का क्यूब. So these relations, you know, remembering. So sometimes we need it in physics. So you should remember all this. क्यूब का याद है आप लोगों को? प्लस है तो सभी टर्म प्लस है और b को माइनस b कर दो और क्यूब है तो इसलिए सब माइनस आ जाएंगे. यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी माइनस b का क्यूब फिर भी माइनस b क्यूब, तो ये माइनस आ जाएगा. यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा. ठीक है. तो दिस समटाइम्स इज रिक्वायर्ड. a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square can be written a plus b into a minus b. ठीक है. These formulas are required frequently. You are supposed to be remembering them. All right. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन देखो ये है ज्योमेट्री. ये भी यू नो ऑल दिस इन 10th में. स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. दिस यू समटाइम्स टेंड टू फॉरगेट. रिमेंबर करो, ये रिमेंबर करके रखो. अदर्स आर सर्कल एंड ऑल यू रिमेंबर वेरी वेल, नो प्रॉब्लम. तो these are also required. Particularly this one is frequently required, and volume also. Okay, next one is this quadratic equation का solution x. This is also frequently required. क्या होता है याद है ये? माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ पे दो रूट से देखो, एक प्लस आएगा आंसर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशंस आएंगे, x का एक प्लस में और दूसरा माइनस, है ना. ऑलराइट. एंड ट्रायंगल की कुछ फार्मूले देखते क्या है. व्हाट वी नीड इज दिस वन. देखो ट्रायंगल का देखिए, ये देखिए अगर एंगल्स आर ए बी सी एंड अपोजिट साइड्स आर ए बी एंड सी. ये एंगल ए है तो उसकी अपोजिट साइड स्मॉल है ना. देन साइन फार्मूला, दिस साइन ए, इसका जो है ये एंगल है, इसका साइन ए डिवाइड बाय अपोजिट साइड विल बी इक्वल टू साइन ऑफ बी डिवाइड बाय अपोजिट साइड will be equal to sine of c divided by opposite side. So this relation is sometimes required. You have to remember. And this also, a sine relation it is called, and cos relation is this. C, suppose ये side का square हमें निकालना है, that will be equal to the sum of the remaining side का square, a square plus b square minus of 2ab into cosine of opposite angle. ये c है, c का जो opposite angle है c, तो उसका cosine. If this angle is 90, then ये term पूरा 0 हो जाएगा. 90 डिग्री एंगल पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा. तो that will be equal to under root of a square plus b square. ये अंडर रूट ले लेंगे. But if it is other than 90 angle, then this term also comes. ठीक है. तो sometimes we need this also in some of the chapters. तो solving becomes easy. इससे easy solving हो जाती है इन दोनों से. Otherwise you have to use other techniques to solve. Without also you can solve it, but this will save your time.
ठीक है, Sure. अदरवाइज Sure. राइट एंगल में ब्रेक करके दो ट्रायंगल से हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोइंग दिस फार्मूला आल्सो, एनी सिचुएशन वी कैन टैकल। या बोलिए। सर आप वो जो मैक्सिमम वाले पे मैक्सिमम वाले का देखना है आपको। ओके, ये हो गया। Yes. Yes. तो मैक्सिमम क्या दैट थियरी पार्ट यू वांट टू सी, एक मिनट पीछे होगा काफी, है ना? 137 चल रहा है, 100 के आसपास होगा मैक्सिमम, समवेयर हियर होगा। ये था मैक्सिमम में थियरी पार्ट। सर ये नहीं आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही, फिर से बोलिए। ज्योमेट्री वाला Anybody can just explain me what she's telling? Just are you able to hear others? Just somebody. No, sir. Her voice is echoing. हाँ अभी now it's okay. बोलिए। Just now you tell me what do you want? सर ज्योमेट्री वाला। हाँ okay, I'll show you geometry वाला। Done. यस सर, थैंक यू। ओके, तो ये हो गया। और नेक्स्ट वन, ये टेबल जो है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में दी जाएगी, बताई जाएगी पूरी 180 तक का। देखो 0 डिग्री को हम जीरो रेडियन लिखेंगे, 30 डिग्री को π/6 रेडियन लिख सकते हैं, 45 को π/4 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज यू आर सपोज टू नो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं है याद, तो साइन 90 प्लस थीटा से निकाल सकते हैं। क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 है, 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है वो, इट विल रिमेन पॉजिटिव। सब पॉजिटिव वैल्यू है देखो साइन की सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के बाद, एंड कॉस की नेगेटिव वैल्यू है सारी, 10 की नेगेटिव वैल्यू है, तो 90 प्लस थीटा से निकाल सकते हैं। बट दिस मच यू शुड नो। ये आता है आपको, कैसे आएगा? डू यू नो हाउ डू वी गेट दिस? 0 1 2 3 लिख के, है ना, 0 1 2 3 4 से डिवाइड करते हैं सभी में, है ना, फिर अंडर रूट लेते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये कितना √3/2 एंड दिस वन। तो ये कंप्लीट, यू कैन सी दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। ये देखो ये वैल्यू है पूरी। अदर्स तो फिर तुम्हें इसको अपोजिट ऑर्डर कर दो तो कॉस की हो जाती है, डिवाइड कर दो तो 10 की वैल्यू हो जाती है। इन दोनों इनको सीक्वेंस चेंज कर दो, 1 इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ये इधर, ये इधर और ये इधर, तो कॉस की वैल्यू बन जाती है वो, और डिवाइड कर दो 10 बन जाता है ना। तो दिस टेबल, इसमें कौन सी वैल्यू में ज्यादा लगती है? दैट लेट मी मार्क दैट। साइन 180 की वैल्यू में लगती है विच इज 0। cos 180 also we need it, cos 120 also we need it very frequently। ये तीन वैल्यूज हमें बहुत ज्यादा लगती हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. ओके। और ये दिस यू नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट का निकालना है या थर्ड का या फोर्थ का निकालना है तो ये टेबल रहती है। और ये आपकी यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, है ना।
आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। और कैसे सीखा आप लोगों ने? हाउ टू रिमेम्बर दिस सीक्वेंस? Sir, add sugar to coffee. Add sugar to coffee, ऐसे लर्न कर सकते हैं। All positive, sign positive, only sign positive, only 10 positive, only positive. So this sometimes we need it in third quadrant, particularly second quadrant में ही mostly we need it. तो वो तो ऑलरेडी लर्न हो गया आपको, केवल साइन को छोड़ के बाकी दोनों नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है एंड अदर टू आर नेगेटिव। ठीक है, तो वी मे कम अक्रॉस दिस सिचुएशन आल्सो इन डिफरेंट चैप्टर्स, तो ये लर्न कर लो। cos 90 एंड cos 270 0 होता है, sin 90 1 होता है और sin 270 -1 होता है। वो भी ग्राफ में देख सकते हैं हम साइन एंड कॉस का। ओके, साइन एंड कॉस का कर्व हमें फ्रीक्वेंटली लगता है डिफरेंट चैप्टर्स में। साइन थीटा वर्सेस कॉस थीटा, साइन थीटा वर्सेस थीटा, तो 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती, 90 पर +1 होती, देन अगेन 180 पर 0 होती, 270 पर -1 होती एंड 2 पाई मीन्स 360 फिर से 0। तो साइन का कर्व 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन +1 एंड -1। अगर तुमने कभी कोई क्वेश्चन साइन की सॉल्व की मतलब, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 2 आ गई, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, आइदर दैट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल और यू हैव डन सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि +-1 के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है वो, ये +1 है और नीचे का -1 है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू भी प्लस एंड -1 के साथ फ्लक्चुएट होती है। सपोज तुमने सॉल्व किया, कॉस थीटा की वैल्यू से 1.2 आ गई, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, either that situation is not possible or you are doing some mistake in calculation, because +1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती, इसके बीच में फ्लक्चुएट होती है वो ऐसे। cos थीटा, cos 0 is +1, cos π/2 is 0, तो ऐसे ग्राफ नीचे आएगा। फिर cos π is -1, यहाँ पे देखो -1, देन अगेन यहाँ 270 पे 0 हो जाएगा और ये 2 पाई पे फिर से cos की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, it will continue to move like this. So these both the graphs are frequently required. If you have any difficulty in this, you can ask. All right. Yes, sir. Yes, sir. Okay. tan थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें नेवर बी नीडेड, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख सकते हैं, मैथ्स में सीख सकते हैं। ये फार्मूलेस भी हमें डिफरेंट डेरिवेशंस में भी नीड देम। तो जैसे ये फार्मूला है पहला, फर्स्ट वन, sin a + b। एक मिस्टेक तो तुम लोग ये करते हो, सम ऑफ द स्टूडेंट आई हैव सीन sin a + b, sin a + sin b, दैट इज रॉन्ग। इसका एक्सपेंशन ये होता है, sin a + b is sin a into cos b plus cos a into sin b। अगर माइनस कर दिया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। cos a + b का एक्सपेंशन cos a cos b plus sin a sin b, इसमें cos के टर्म एक साथ आ गए, sin के टर्म से एक साथ आ गए, इसमें sin a एंड cos के टर्म से एक साथ है ना, sin एंड cos, here also cos एंड sin सेम है, ओनली साइन चेंज हो गया। अगर हम इसको एक साथ लिख सकते हैं दोनों रिलेशन को, प्लस माइनस कर दे तो यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा। cos में देखो, cos a - b में यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है।
ये हमें डिफरेंट चैप्टर्स में वी में रिक्वायर। 10 ऐसे 10 का फार्मूला होता है, 10 वाले हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मे नॉट बी रिक्वायरिंग, बट यू हैव टू लर्न दिस, है ना, कभी जरूरत पड़ी तो। अगर इसमें b इज इक्वल टू a पुट कर दें तो ये वाला रिलेशन क्या बन जाएगा, sin 2a बन जाएगा, है ना। तो दोनों sin a cos a हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, ट्वाइस, तो इट विल बी 2 sin a cos a। गेटिंग दिस? हम यहाँ से b की वैल्यू a पुट कर दो, हियर आल्सो, हियर लो, हियर आल्सो, तो राइट साइड विल बिकम 2 sin a cos a, गॉट इट। एंड ये वाला cos 2a हो जाएगा लेफ्ट साइड में, एंड ये यहाँ भी cos a, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा दो बार, और यहाँ भी sin a तो sin स्क्वायर a, तो ये cos sin 2a की वैल्यू और cos 2a, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, वेक्टर्स के चैप्टर में, वी नीड इट अगेन एंड अगेन, दिस एंड दिस, गेटिंग और नॉट। तो अगर इसको हम यहाँ पे अगर हम a लिख दें तो राइट साइड में क्या होगा, फिर a/2 हो जाएगा, यहाँ भी a/2 हो जाएगा, बिकॉज once we have the 2a here, तो यहाँ पर a एंड a, इफ एंगल को हमने हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा। तो sin a की वैल्यू, sin a का एक्सपेंशन 2 sin a/2 cos a/2, इफ हियर a comes, और यहाँ पर अगर हमने a लिखा तो यहाँ पर भी हाफ करना पड़ेगा, a/2 हो जाएगा, है ना। तो समटाइम्स वी डोंट हैव 2a हियर, वी हैव a हियर, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली हियर आल्सो cos a का एक्सपेंशन cos स्क्वायर a/2 sin स्क्वायर a/2, मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आई हैव रिटन हियर, इफ वी मेक इट थीटा हियर, तो यहाँ पे θ/2 हो जाएगा, यहाँ भी θ/2, और यहाँ पे थीटा कर दिया तो यहाँ पर भी 2 sin θ/2, यहाँ भी 2/2 आ जाएगा। लास्ट में नोट कर लेंगे इसको, पहले देखो कंटिन्यू करते हैं इसको। ये हो गया, तो दिस इज योर वन ऑफ द सिचुएशंस, एंड इसे यहाँ भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, यहाँ भी ये हो जाएगा, तो इट विल बिकम sin 2a, सॉरी tan 2a, तो ये यहाँ भी 2 tan a और नीचे स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस में तो जीरो ही हो जाएगा ये, तो नथिंग विल बी लेफ्ट हियर, हियर आल्सो जीरो, nothing will be left here, प्लस वाले will be remaining, माइनस वाले will become zero, getting these relations। तो ये relations और ये वाले we need in various chapters in physics, यहाँ पे मैंने important लिखा। All right, Yes, sir. Yes, sir. and ऐसे ही some more relations are there in trigonometry here, ये वाले भी देखो, ये these में नहीं, तो ये sum and difference वाले हैं, sin a plus b is 2 sin a plus b/2 into cos a minus b/2, और अगर यहाँ पे माइनस है तो cos वाला टर्म पहले आ जाएगा, sin वाला बाद में आएगा, इसमें sin वाला टर्म पहले है, sin and cos will interchange if we have minus in between, all right। Similarly cos a plus b will be cos a plus b/2, 2 भी है आगे, into sin a minus b/2, दोनों cos के टर्म आ गए। अगर यहाँ पे cos a plus b cos a plus cos b है, तो both the cos terms, अगर माइनस है तो both terms become sin, and here also minus आ जाएगा, ठीक है। तो you can just see them, and next one we'll see product formula भी देखेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोडक्ट फार्मूला देखते हैं अभी। प्रोडक्ट में देखो 2 sin a cos b is nothing but a sin a plus b plus sin a minus b, and cos a sin b में
यहाँ पे माइनस आ रहा है। अगर दोनों कॉस है तो यहाँ भी दोनों कॉस के टर्म है, और दोनों साइन है तभी भी कॉस के टर्म है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, और ये पहले माइनस बी आ गया। ठीक है, तो दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड इन सम ऑफ द डेरिवेशंस इन फिजिक्स। तो इन दोनों, इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या? देखो, अगर हम इस पूरे को सी मान लें, इसको डी मान लें, तो दिस बिकम्स 2 sin c इंटू साइन डी, तो ये वाला ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये a की जगह फिर a प्लस बी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम c प्लस डी, यहाँ पे c माइनस डी। तो ये और ये इंटरकनेक्टेड है। देखो, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। इफ यू मेक द चेंजेस हियर, इसको c एंड d ले लो, तो यहाँ पर c प्लस डी आ जाएगा, और यहाँ पर c माइनस डी आ जाएगा। इफ यू सी क्लोजली देन यू कैन रिलेट देम। ऐसे ये भी है, देखो, ये cos c और इसको d मान लो पूरे को, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाले साइड इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो साइन है बीच में, और साइन है दोनों, ये भी दोनों साइन है, और बीच में माइनस भी है, और ये a विल बी कन्वर्टेड इनटू c प्लस d, अगर इसको हमने c लिया, इसको d लिया, तो बोथ आर रिलेटेड, बट यू हैव टू जस्ट closely observe, then only you can find the relation. Difficult to remember है, ये तुम लोगों को थोड़ा सा लर्न करके रखना पड़ेगा। This is done in maths. Have you done these relations? Yes, Have you sir. seen? Yes, sir. Trigonometry में हो चुके हैं। 10th में थे क्या ये? Did you have in 10th standard? No, sir, we Are did it- not have these. No, sir, we did Okay, not 11th have में these. किया आप लोगों ने मैथ्स में, trigonometry में। Is there any easy technique to remember? इसको कुछ याद रखने का तरीका है आसान, easy, or you have to just by heart? बोलिए, मैथ्स टीचर ने आपको कुछ बताया याद रखने का इजी मेथड? नो? ठीक है, फिर यू डेवलप योर ओन टेक्निक टू रिमेम्बर, बट वेन एवर डेरिवेशंस कम, तब हम पहले रिलेशन लिख लेते हैं वहां पर, देन वी डू द डेरिवेशन। ऑलराइट, नोट कर लो इसको, डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस फार्मूला एंड प्रोडक्ट फार्मूला। ऑलराइट, so these we will need it, some of them are required in derivations in 12th standard and 11th also sometimes. Okay, moving on to the next one. देखो, ये अभी cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta अभी हमने देखा था। Can we prove this and this from this? कैसे प्रूव करेंगे? ये आइडेंटिटी लेके, this we know sin square theta plus cos square theta is 1, यहाँ से sin square की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, सॉरी sin square थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो देखो हमने यहाँ पे किया, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाता है, और जब cos स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये वाला रिलेशन मिल जाता है। देखो, ये हमने cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया इसको sin स्क्वायर में, तो ये दिस रिलेशन से एक बार sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो, एक बार cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो, तो वी गेट दिस आल्सो। तो ये हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है, cos 2 थीटा की वैल्यू वेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें पुट करनी पड़ती है। तो डोंट आस्क मी सर ये कहाँ से आ गई, ये और फिर इससे हमने कन्वर्ट किया। तो यू कैन सी द डेरिवेशन, आई हैव डन इट। मैथ्स में किया आप लोगों ने? Yes, sir. I think so. Yes, sir. I think बट so. दो हु डोंट हैव मैथ्स, उनको, उनके लिए ये मैंने डिराइव करके दिया है, बट यू डोंट, डेरिवेशन तुम्हें पता होना चाहिए, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, because in next chapters of vectors we need them frequently. If you have doubt you can ask, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें। ये 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एंड sin 2 थीटा का भी देख लेते हैं।
साइन 2 थीटा के इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो। ओके, कॉस 2 थीटा का मैंने फिर से रिपीट, अच्छा अगर 2 थीटा को हमने थीटा से रिप्लेस किया तो यहाँ फिर यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा, ये आल्सो। तो कॉस थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, एंगल अगर हमने हाफ किया इधर, इधर भी हाफ करने पड़ेंगे, है ना। और साइन थीटा का क्या आएगा, उसका भी ऐसे आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का क्या था, ये था साइन 2 थीटा का, हमने ऊपर सीखा था ये, इट वाज 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो इधर अगर थीटा हो गया तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। मैं ये रब कर देता हूँ, दिस इज नॉट। तो दिस आल्सो वी नीड वेरियस प्लेसेस, ऑल these relations। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू प्रूव, जस्ट नोट डाउन, दैट्स ऑल। इसको प्रूव नहीं करना, ऑलरेडी हमने किया है ऊपर, यू रिमेंबर दिस। ओके, Yes, sir. Yes, sir. और ये भी कुछ समय सम ऑफ द दिस बाइनोमियल थ्योरम, ये मैथ्स में आपको पढ़ाई जाएगी। 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन ये होता है। तो दिस इज प्योरली मैथ्स टॉपिक, बट व्हाट वी नीड इज दिस मच ओनली, वी नीड दिस वन। व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ पे जो x की वैल्यू बहुत कम होती है, तो एक्स स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल, फर्दर वेरी वेरी स्मॉल, ये टर्म बहुत छोटा हो जाता है। तो वी नीड फर्स्ट 2 टर्म्स, ये वाले। यहाँ पे देखो 1, ये जो ये नीचे 1 है, इसको फैक्टोरियल 1 बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, तो दिस विल बी 1। तो व्हाट विल बी लेफ्ट, 1 माइनस nx। तो ये ओनली 2 टर्म्स वी नीड इन फिजिक्स। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे दिए हुए हैं ये सब, दे आर गिवन इन द लास्ट पेजेस, you can see, but what we need is this much. So 1 minus x ka to the power n, when x is very very small as compared to 1, we can write this much. और अगर माइनस है यहाँ माइनस n है, this minus and minus will become plus here, तो plus nx आ जाएगा। तो power comes in front along with the x, 1 remaining as it is. So this much will be required in various derivations of physics, where the x value will be very very small. This is called binomial theorem. This full chapter will be there in maths. N is constant. N is any number, constant number. It can be 1, 2, 3, or ratios 1/2, -1/2, plus minus both, and full number or fraction. ठीक है। और e raised to power x हम देख रहे थे उसमें, what is called differential calculus वगैरह में, उसका expansion भी होता है ये, but this we don't need it in physics, but you just remember in case it comes, you come across this, so it is nothing but a expansion of x। इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2, डू यू नो मैथ्स में था क्या था फैक्टोरियल 2? इसकी वैल्यू 2 into 1 होती है ना। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 4 का 4 into 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ up to the 1। That is what is the meaning of factorial 4। So that is again part of the math we may not come across। ठीक है। log का जो है, log 1 plus x का expansion is sometimes required in advanced level of
जेई। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दिस। 1 प्लस log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो होता है ये होता है, देखो पहला टर्म एक्स है, फिर माइनस है एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस है, प्लस माइनस अल्टरनेट है, एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस एक्स 4/4 एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड एक्स इज 1 और लेस देन 1, अप टू इनफाइनाइट जाता है ये। तो अगर हमने एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, log 2, log 1 प्लस 1 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट ए log 2। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की जगह 1 पुट कर दो, ये 1 हो गई। यहाँ पर अगेन एक्स इज कमिंग, एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर इज 1/2। अगेन एक्स क्यूब इज कमिंग, 1 का क्यूब 1 ही रहने, ऊपर सब टर्म्स 1 रहेंगे, 1 देन माइनस 1/2 देन प्लस 1/3, ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 1 1 नीचे 1 2 3 4 होता जा रहा है, एक प्लस एक माइनस। दिस इज नथिंग बट ए एक्सपेंशन ऑफ log 2। तो देयर वाज वन क्वेश्चन इन जेईई एडवांस फिजिक्स में था वो, ये सीक्वेंस आ गई थी, इसकी जगह log 2 उन्होंने पुट कर दिया था ऑप्शंस में। So if you know this expansion, then you can just know it is nothing but a log 2. ठीक है, तो we need it in competitive examination, this one. ठीक है, और ये साइन थीटा का भी एक्सपेंशन होता है। डू यू नो दिस, ऐसे रहता है साइन थीटा का एक्सपेंशन। तो what we need this much only. When theta is very small, तो ये स्क्वायर वाले टर्म छोटे हो जाएंगे, ये वाले स्क्वायर एंड क्यूब तो बहुत छोटे होते जाएंगे, तो ये दिस वी कैन लीव। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा कॉस थीटा, पहला टर्म लिखेंगे दैट इज 1, tan theta will be theta, other terms we are leaving for small angles or very small angles, और जो हम थीटा लिखेंगे यहाँ पर that should be converted into रेडियन में लिखना है कन्वर्ट करके। तो थीटा सपोज साइन, ओके नीचे मैंने एग्जांपल लिया, चलो नीचे देखते हैं, लेट अस सी द एग्जांपल। So this is called small angle approximation. Sin theta is equal to theta, cos theta is equal to 1, and tan theta is equal to theta when theta is very small, less than 10 डिग्री से कम है, तब ये वैल्यू, तब ये रिजल्ट वैलिड रहेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस सी वेदर दे आर कमिंग करेक्ट और नॉट। साइन थीटा का चेक करते, सपोज साइन थीटा साइन 7 डिग्री, आई टोल्ड यू लेस देन 10 डिग्री के लिए दे आर वेरी एक्यूरेट। तो साइन 7 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है। हाउ डू यू नो हाउ टू सी साइन 7 डिग्री? पता है कैसे दिखता है? लॉग टेबल होती है उसके लिए, आपको लॉग टेबल परचेस करनी पड़ती है मार्केट से। डू यू हैव लॉग टेबल? हैव यू हर्ड दिस? Yes, sir. लॉग But टेबल, I don't have. हाँ लॉग टेबल मार्केट में मिल जाएगी आपको, वेरी थिन बुकलेट, 10 रुपीज 15 रुपीज में। उसमें साइन की वैल्यू भी होंगी, लॉग की वैल्यूज भी होंगी, कॉस की होगी, टेन की होगी, एंड अदर एक्सपेंशन विल बी देयर, ऑल एडिशनल दैट मैथ्स के जो फार्मूले होंगे सब होंगे उसमें। तो नेचुरल साइन में जाइए आप, उसके लॉग टेबल में ढूंढिए नेचुरल साइन कहाँ है, उसमें 7 डिग्री, देखो यहाँ पे डिग्री लिखा है, 0 डिग्री 1 डिग्री, तो 7 डिग्री में फर्स्ट कॉलम में देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, देखो 0.1219, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 0.1219, उसको राउंड ऑफ कर दिया, 9 हटा के प्रीवियस डिजिट को 1 से बढ़ा दिया, तो इट बिकम्स 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.122, 3 डेसिमल प्लेसेस रखते हैं। नाउ साइन 7 डिग्री, अभी ये क्या फार्मूला बोलता है, साइन थीटा इज थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, तो 10 डिग्री से कम है, तो साइन 7 डिग्री को हमने 7 डिग्री लिख दिया, केवल साइन हटा दिया फ्रॉम दिस फार्मूला, कैन यू सी? लेकिन इसको रेडियन में क्या लिखा है मैंने, इन रेडियन में कन्वर्ट करके वैल्यू देखना है, तो अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 7 × π/18,
पाई बाई 180, पाई की वैल्यू पुट कर दो अभी 22/7, 7 कैंसिल हो गया, 22, इसको और छोटा कर लो, 2 से डिवाइड कर लो 11, ये 90, और इसको 0 भी हटा लो, 1.1 डिवाइड बाई 9, 1.1 डिवाइड बाई 9, इसको सिंप्लीफाई करो 0.1 एंड फिर 2 आएगा, 20 आएगा, 20 को 9 से डिवाइड करो 2, फिर 2 बचेगा, फिर 0.122 आ गया, 0.12 सेम आ रहा। देखो अगर हम टेबल में देख लेते हैं इसकी वैल्यू, और इसको हमने सिंपली 7 डिग्री लिख के रेडियन में कन्वर्ट करके चेक किया, तो बोथ वैल्यूज आर कमिंग सेम। जितनी साइन थीटा की वैल्यू आ रही टेबल से, साइन 7 डिग्री की, उसकी 7 डिग्री को हमने साइन हटा के 7 डिग्री लिखा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया तो 0.122। तो अगर आपके पास टेबल नहीं भी है ना, तो साइन को या टेन को हटा लो, और उसको जो भी डिग्री है 1 से लेकर 10 डिग्री तक, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करो तो आंसर मैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन विदाउट टेबल, यू कैन जस्ट चेक। तो साइन थीटा को थीटा लिख दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी। सपोज इफ यू सी कॉस 0 तो 0 ही होता है, चलो इसको भी चेक करते हैं। कॉस 0 जो है तो 0 हो गया, लेकिन कॉस 0 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा मैंने। कॉस 0 कितना होता है 1, बट अगर आप कॉस 5 डिग्री का देखें तो इट विल बी वेरी क्लोज टू 1, 0.999 कुछ आएगा इसका, तो इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 ओनली। कॉस 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तक वो वेरी वेरी क्लोज टू 1, 0.99999 ऐसे। तो लेस देन 10 डिग्री की वैल्यू वेरी क्लोज टू 1 होगी, 0.99999 लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। फिर कहीं पे अगर साइन थीटा आया, इट विल बी क्लोज टू टेन थीटा, जो मतलब साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू सेम आएंगी टेबल में। अगर तुम साइन थीटा नेचुरल टेंजेंट में जाइए, तो ये जो 1 to 10 डिग्री, दे ऑल वैल्यूज विल बी वेरी वेरी सिमिलर, बिकॉज यहाँ से हम बोल रहे हैं ना साइन थीटा इज थीटा, टेन थीटा इज आल्सो थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, both are equal to theta when theta is very small angle, less than 10 degree. Theta is less than 10 degree. So they both will have the values equal, and which will equal to theta, which will be equal to theta. ठीक है, तो कई डेरिवेशन में हम साइन थीटा हटा के केवल थीटा लिख देते हैं। यू सी इन द ऑप्टिक्स लाइट के चैप्टर में जब डेरिवेशन करते हैं ना, मिरर फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, आई मीन लेंस फार्मूला, एंगल्स कम रहते हैं, तो साइन थीटा हटा के थीटा या टेन थीटा लिख देते हैं वहां पर, और टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे चेंज करते हैं वहां पर। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज हायर वैल्यूज विल बी वेरी स्मॉल, तो ये इसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज फुल एक्सपेंशन इज दिस, इट गोज अप टू मेनी टर्म्स or infinite term, but this is of our significance when theta is very small, less than 10 degree. उसको भी रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है। अगर डायरेक्ट लिख दिया 7 साइन हटा दिया तो 7 डिग्री, बट उसको फिर रेडियन में आंसर आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So this also we need in physics, and this, और कभी कभी सीरीज बनती है हमारी ये इस तरह की, ऐड करना पड़ता है अप टू 50 टर्म्स और 100 टर्म्स और 10 टर्म्स, तो छोटे कम टर्म्स है तो ऐड कर सकते हैं, बट इफ सीरीज गोज वेरी लेंथी तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो हैव यू हर्ड दिस? इस टाइप की जो सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस एक कांस्टेंट है, देखो 4 and 2 का डिफरेंस कितना है 2, नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस 2, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हैव यू हर्ड दिस इन 10th और 11th में किया है इसको? Yes, sir. एपी सीरीज 10th में थी क्या? Yes, sir. It was a chapter. It was a chapter. चैप्टर था, तो बस फिर हमें फार्मूला लर्न करना है, ओनली वी नीड दिस फार्मूला। सम का फार्मूला याद है आपको? सम ऑफ n टर्म्स n by 2
2a plus n minus 1 into d. A is the first term, d is the common difference. ठीक है, तो जैसे इसको चेक करते हैं, ये फार्मूला सही है, डिड आई राइट करेक्टली, चेक करके देखते हैं। चलो फर्स्ट टू टर्म्स को देख लेते हैं, कितना आ रहा है 6, इसी से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन 6 है, तो यहाँ पे फार्मूले में भी देख लेते हैं, दो टर्म्स हैं 2/2, फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस इज 2, तो 1 हो जाएगा, नहीं n minus 1, 2 minus 1 is 1 और डिफरेंस भी 2 है, तो ये कितना आ रहा है देखो, 2 2 1 हो गया, कितना आ रहा है 4 plus 2 6 आ रहा है ना, ठीक है फार्मूला ओके। तो दिस समटाइम्स वी नीड, बट नेक्स्ट सीरीज इज वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड। ये तो अरिथमेटिक एपी सीरीज है, तो इन समवेयर इट इज रिक्वायर्ड इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्टिकुलरली। जब बहुत सारे टर्म्स आ गए तो इससे ऐड कर लेंगे, बट दिस सीक्वेंस इज, दिस सीरीज इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, जीपी सीरीज। डू यू नो दिस? Yes, sir. A quickly little बोलो। bit. Yes, sir. A हाँ, little bit. तो इसमें देखो हमें केवल ये फार्मूला चाहिए। देखो जीपी सीरीज कैसी होती है, पर्टिकुलरली दिस वन, डिक्रीजिंग नंबर्स वाली, और इसमें भी कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म तो ये रहेगा ये, और कॉमन रेशो मतलब सेकंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो आर। इट इज द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स एंड ए इज द फर्स्ट टर्म। तो इस टाइप की सीरीज का सम जो है, nth टर्म्स का सम जो है a 1 minus r to the power n डिवाइड बाय 1 minus r, मैंने r इज लेस देन 1, r जो है ये कॉमन रेशियो लेस देन है। देखो यहाँ पे कितना है कॉमन रेशियो, 1/2 है, दो सीक्वेंस, दो टर्म्स का रेशियो, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो 1/2 है, तो r इज लेस देन 1, तो ये होगा। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। बट वी नीड इनफाइनाइट सीरीज का सम ऑलवेज इन फिजिक्स। तो इनफाइनाइट सीरीज में r शुड बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो फिर तो वो आपका इनफाइनाइट नंबर ही आ जाएगा। अगर लेस देन 1 है, डिक्रीजिंग होता जा रहा है ये, है ना, तो r विल बी लेस देन 1, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये तो आपका जब इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा। सपोज इसमें कॉमन रेशियो 1/2 है, तो 1/2 1/2 इनफाइनाइट नंबर तक लिखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल बी 0, तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो बचेगा क्या ऊपर, a डिवाइड बाय 1 minus r, ठीक है। तो ये फार्मूला फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होगा, a upon 1 minus r इन सम ऑफ द चैप्टर। तो कैन वी डू, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं कितना आ रहा है, देखो डू इट हियर इटसेल्फ, ये वाला, ऐड फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 and so on up to infinity, इसको ऐड करना है। देखो क्या आंसर आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज a is 1, यहाँ पे 1 पुट कर दो, और कॉमन रेशियो कितना है 1/2 आ रहा है ना, r इज 1/2, किसी दो सक्सेसिव टर्म का रेशियो 1/2 आ रहा है, तो ये 2 आ जाएगा इसमें। तो इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन सम इसका फाइनाइट आएगा क्योंकि छोटे होते जा रहे नंबर। आर यू देयर? नंबर्स छोटे होते जा रहे, देखो, आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. r जो है कॉमन रेशियो, दो सक्सेसिव टर्म को निकालो डिवाइड करके, तो ये आ गया 2 आएगा। सीरीज इनफाइनाइट है, बट एडिशन उनका सम जो है फाइनाइट है, बिकॉज टर्म्स आर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत छोटे होते जा रहे हैं। गॉट इट? तो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। कुड यू गेट दिस? अदर थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, देन यू कैन डू इट इन मैथ्स। बाकी चीजें इसमें nth टर्म क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सीरीज क्या होती है, वो सब। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो इसको। देन वन मोर लॉग का फंक्शन बाकी है, उसको बता देता हूँ, देन दिस विल बी ओवर। नेक्स्ट क्लास वी कैन जस्ट come back to the chapter number 3. We will see velocities, acceleration, instantaneous value we will learn next class onward. Velocity, speed and acceleration.
and equations of motion, kinematic equations that we will do. Okay, noted. And अच्छा ये भी कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 10 तक। तो ये फार्मूला होता है n plus 1/2, फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स को ऐड करके देखिए 55 आ रहा है, 100 टर्म्स को ऐड करके देखेंगे 50 आएगा, 5050 आ जाएगा ये फार्मूले से। ये थे मैथ्स में, आपके मैथ्स में किए आप लोगों ने? ये नहीं किए तो नोट कर लो फार्मूला, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उनका एडिशन। और स्क्वायर कर दिया तब क्या फार्मूला होता है? स्क्वायर कर देंगे तब नो, जब उसका स्क्वायर का फार्मूला ये आएगा n plus 1 2n plus 1 by 6, ठीक है। तो इसको ऐड करते फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 10 टर्म्स है तो ये हो जाएगा 10, ये 11 और ये 21 हो गया, डिवाइड बाय 6, 385। इसको चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स के लिए चेक कर लो, 2 टर्म्स के लिए कितना आ रहा, 5, इससे भी निकाल के देखो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस यू रिमेंबर इन वन ऑफ द चैप्टर्स, दिस इज रिक्वायर्ड। सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में इस तरह की सिचुएशन आती है, इसमें स्क्वायर करना पड़ सकता है एंड क्यूब भी करना पड़ सकता है। क्यूब का आता है आपको? अभी देर नो सर। सर क्यूब No, का sir. सर क्यूब क्यूब का का देखो फर्स्ट प्रीवियस वाले का ही स्क्वायर है, जो फर्स्ट सीखा था ना उसका। क्यूब का देखो ये n इंटू n प्लस 1/2 जो फर्स्ट में सीखा था उसका स्क्वायर है, क्यूब नहीं करना उसको, स्क्वायर है। तो देखो क्यूब 10 डिजिट्स का क्यूब का सम इतना आएगा। फर्स्ट 2 डिजिट्स का चेक कर सकते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का, तो 9 आ रहा है। इस फार्मूले में लिख के देखो 2 डिजिट्स का ये n2 आ जाएगा इंटू 3/2 का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब 9 आ गया, है ना। डायरेक्ट भी करके देखो, फार्मूले से भी चेक करके देखो। ऑलराइट, तो ये तीनों आपको आने चाहिए फार्मूले, इन वन पर्टिकुलर चैप्टर वी नीड इट, ऑल 3। कहाँ गया तीसरा भी दिख रहा है, देखो यहाँ तीसरा ऊपर है, वो छुपा हो गया। चलो ब्रिंग इट क्लोजर, ऑल 3 यू कैन सी टुगेदर। कैन यू सी नाउ ऑल 3? छोटा sir. दिख रहा है, एक Yes, sir. मिनट, हाँ। सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन, थर्ड वाला तो फर्स्ट का ही स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ऑलराइट, नाउ फाइनली जस्ट 10 more minutes I need to complete this mathematical tools। देखो लॉग फंक्शन के 2-3 फार्मूले हमें लगते हैं, तो पहले तो लॉग को हम समझते थोड़ा बहुत। देखो सपोज ये 3 डिजिट्स हैं ए बी सी, और such that they are related with this relation b to the power c is equal to a। जैसे ये फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये रिलेशन है, वैलिड है रिलेशन। इस टाइप की सिचुएशन है कोई, इस टाइप की डिजिट्स हैं ये, तो इनका जो है लॉग के साथ कैसा रिलेशन आएगा देखो। अगर हम देन वी विल हैव अ लॉग ऑफ ए, ये ए अपनी जगह है, बी हैज कम टू द बेस ऑफ द लॉग एंड सी पावर से नीचे इक्वल टू के बाद आ गया। तो इफ दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर, तो दे विल हैव रिलेशन ऑफ लॉग लाइक दिस। क्या हुआ, ए अपनी जगह रहा, बी जो था राइट साइड का बी, दैट इज शिफ्टेड टू द बेस ऑफ द लॉग, पावर नीचे आ गई। फॉर एग्जांपल ये वाला रिलेशन लेते हैं देखो, तो 10 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 100, तो लॉग ऑफ 100, और ये जो 10 था वो नीचे शिफ्ट कर दो, बेस में शिफ्ट करना पड़ता है, बेस 10 विल बी इक्वल टू 2।
तो ये वैल्यू भी आ गई और रिलेशन भी ऐसे बनता है वो, कोई भी रिलेशन कोई भी आप बना सकते हैं। तो 10 जैसे ये लिया हमने 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1, तो log ऑफ 1 ये अपनी जगह रहा, बेस नीचे चला गया 10 विल बी इक्वल टू 0, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। और ये 10 to the power 1 को हम 10 ही लिखेंगे, तो log 10 और ये वाला 10 नीचे आ गया, पावर उतर के पावर फिर राइट साइड में नीचे शिफ्ट हो गई, तो log 10 बेस 10 इज 1। ये हम फार्मूला भी ये फार्मूला होता है, उससे हम वैल्यू निकाल लें। बेस 10 की वैल्यू सब सीख रहे हैं, अदर की भी देखेंगे। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। 10 to the power 3 is nothing but 1000 एंड log के टर्म्स में रिलेशन आएगा log 1000, ये अपनी जगह रहा, दिस हैज गॉन टू द बेस और पावर 3 नीचे आ गई, तो log 1000 बेस 10 इज 3 एंड वन एग्जांपल हम दूसरी डिजिट का ले रहे हैं। 2 to the power 3 कितना होता है 8, तो log 8 और ये बेस में आ गई, log 8 बेस 2 की वैल्यू 3, बट वी डोंट कम अक्रॉस दिस log बेस 2 एंड ऑल, वी आर डीलिंग विद log बेस 10 ओनली और log बेस e जिसको हम नेचुरल log बोलते हैं, बस दिस टू वी नीड। ठीक है, तो ये तो हमने एक डिजिट से फार्मूला बनाया और दूसरी वैल्यू निकाली, तो एक तो ये पॉइंट लर्न करना है। ठीक है, यहाँ से ये वाला इसमें हम यहाँ से हमने वैल्यूज भी सीख ली। log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 10 बेस 10 ये कॉमन लॉग है, log बेस 10 जो होता है कॉमन log टेबल में इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, इसको बोलते हैं कॉमन log टेबल में दिखा देता हूँ इसको, log 10 की वैल्यू टेबल में भी शो करता हूँ मैं आपको, देखो देखते, जस्ट लेट मी सी, ऐसे देखना पड़ता है उसको log, दूसरी वैल्यू है तो log टेबल रेफर करनी पड़ती है। ये log टेबल है क्या? हाँ, लॉगरिथम्स किसकी बात हो रही थी? 10 की बात हो रही थी ना, log 10 log, यहाँ पे 10 है, तो ये वैल्यू लिखनी पड़ती है log 10 में, ऐसे लिखना पड़ता है ऐसे, उसको मैं ओके ऐसे, आई हैव नॉट टॉट यू हाउ टू सी दिस, यहाँ पे है कहाँ पे? ओके, 23 का है। ओके, कैसे देखना है? आई विल कम बैक टू दैट, उसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हो गया, और अदर फार्मूले देखो, ये फार्मूले होते हैं log के, दिस फार्मूले वी नीड, log a into b is what? log a plus log b, this formula frequently required in the derivation। log a प्रोडक्ट फार्मूले में बीच में प्लस आ जाता है, एंड डिवीजन फार्मूले में माइनस आ जाता है। log a by b is nothing but a log a minus log b। ठीक है, तो दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर। log a to the power n, तो पावर आगे आ जाएगी, n log a, बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बेस 10 भी हो सकता है और e भी हो सकता है। बेस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फार्मूला, बेस का हम बाद में डिस्कस करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं 10 को e में। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज यू नीड। इसका एक एग्जांपल भी देख लो, इसका, इस लास्ट वाले फार्मूले का। सपोज log 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 लिख सकते हैं, यस, और 3 आगे आ जाएगा अभी, इट कैन बी 3 log 2। अगर आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है, तो log 8 की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। 8 को आप क्यूब कर लो, पावर आगे आ गई, log 2 की जो वैल्यू होगी 3 इंटू जो भी वैल्यू 0.3 होती शायद इसकी, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बस, ये these 3 formulas we need in what is called log
एक और अभी रिलेशन बता दूं मैं आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लिख लो। जस्ट आई विल शो यू दिस थ्री फार्मूलाज, यू कैन जस्ट राइट frequently required in physics about the log. ठीक है, इनटू में प्लस आएगा, डिवीजन में माइनस आएगा बीच में, और पावर आगे आ जाती है कुछ। जैसे एरर्स में पावर आगे आ जाती है ना। और डिफरेंशियल कैलकुलस में डिवीजन के फार्मूले में प्लस है, यहाँ सॉरी इनटू के फार्मूले में प्लस था बीच में ना, डिफरेंशियल प्रोडक्ट टूल में डिफरेंशिएशन में, और डिवीजन के फार्मूले में ऊपर माइनस था ना। नाउ हाउ टू कन्वर्ट, अभी मैंने दिखाया ना, लॉग टेबल जो है 10 के उसमें होती है, बेस 10 में। जो लॉग टेबल अभी हम देख रहे थे उसको देखने की टेक्निक होती है, तो वो बेस 10 में ही सारी वैल्यू होती है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में बेस ई होता है। देखो ओके, यहाँ पे देखो, ये लास्ट पॉइंट समझ लो पहले। देखो, लॉग बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग। जो लॉग टेबल होती है कॉमन लॉग में, उसके आंसर दिए होते हैं, लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 11 की वैल्यू, लॉग 12 13 सब की वैल्यू दी होती है उसमें। और लॉग बेस ई इज रिटन एज ln, विच इज नेचुरल लॉग। इसको बोलते हैं नेचुरल, एन स्टैंड फॉर नेचुरल, एल स्टैंड फॉर लॉग, दैट कम्स इन कैलकुलस। ठीक है, तो जब हम कैलकुलस में जब हम डिराइव करेंगे तो हमें इसमें मिलेगा, बट टेबल देखने में ये होता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होता है। देखो, ln x, नेचुरल लॉग x, ये वाला इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग x बेस 10। तो ये वैल्यू हमें लॉग टेबल में मिल जाती है, और उसको फिर 2.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ln x की वैल्यू होती है, जो कि हमें डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस में डेरिवेशन में मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई न्यूमेरिकल, आपने कुछ, आपके पास लॉ ln 10 आ गया, उसकी वैल्यू पता करनी है कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस फार्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे। 2.303 लॉग, अभी ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, और लॉग 10 बेस 10 अभी हमने सीखा था 1 होता है ये वैल्यू, तो इंटू 1, तो ये, तो ln 10 की वैल्यू 2.303 होती है। वापस इस, ये समझ में आ गया, ये नोट कर लो। चलो लास्ट में फिर वापस हम उसी में चलते हैं, लॉग 10 वाले जो हमने सीखे थे ना, उसकी वैल्यू कैसे लर्न कर रही है बताता हूँ मैं। इसमें कुछ पूछना है आपको, डाउट से क्या है इसमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट में या पीछे वाले पॉइंट में, इसमें कोई डाउट है? तो सर, नोट कर लिया? तो सर, नोट कर लिया इसको, और ये वाला भी नोट कर लिया? ओके, वापस जो मैंने बिगनिंग में सिखाया था, ये देखो। देखो यहाँ पर 1 है, देखो लॉग 10 है, 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो इसका आंसर 1 होता है। बेस 10 देखना है आपको, बेस अगर 10 नहीं है, ई है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसमें कितने जीरो है, 100 में 2 जीरो था, तो इसका, इसकी वैल्यू 2 होती है। लॉग 100 बेस 10 की वैल्यू 2 होती है। 1000 में कितने जीरो है, 3, तो लॉग 1000 बेस 10 इज की वैल्यू 3 होती है। और ये sir, you are not audible.